یا کسی جو ہے نا ریسزم کے بیچ پہ ڈیویژن ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نزدیک 3 ڈیویژنس ہیں ڈپینڈنگ اپون ان کے ایمان اور کرتوتوں کے حساب سے, اور قیامت میں بھی اسی طرح کے لوگ ڈیوائڈ کیے جائیں گے, کوئی الگ ڈیویژن نہیں دیکھا جائے گا, مومن, کافر اینڈ منافق. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ہماری ابتدا سے لے کر کہانی بتائی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, شیطان کا کس طریقے سے آرگیومنٹ ہوا, ایٹیٹیوڈ کس طریقے سے رہا, اس نے سرنڈر کرنے کے بجائے اس نے جو ہے نا ضد اور ہٹ درمی کو اپنا ہتھیار بنایا, whereas آدم علیہ السلام نے توبہ اختیار کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امامت اور خلیفہ بنا کر دنیا میں ایک وقت مقررہ کے لیے زمین پر بھیجا. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اعبدوا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں سے 40 آیت سے ہم شروع کرنے والے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خلافت کی تبدیلی سے بتا رہے ہیں, اور یہاں سے انشاءاللہ 80 آیت تک ہمارے ساتھ ہمارے ان آیتوں کو ڈسکس کر رہی ہیں ہماری سسٹرز روزی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر میں کنٹینیو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم. تمام تعریف بڑائی پاکیزگی عزت لا شریک رب العالمین اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجے ہیں. ایسا ہی نہیں بھیجا, ہمارے ساتھ ہدایت بھی دیا ہے اس دنیا میں چلنے کے لیے. الحمدللہ یسٹرڈے ہم لوگ ہمارا یہ قرآن تفسیر کا یہ دور شروع کی ہوں جو اوپننگ سورہ فاتحہ سے پھر سورہ بقرہ میں بھی انٹر کیا. ابھی بھی تھوڑا سا ریویژن ہمارا سسٹر فرحت نے پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوا ذالک الکتاب, یہ کتاب کیا ہے اس کا ڈسکرپشن میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے سورہ بقرہ شروع ہوا, اور یہ ہدایت ہے اور ہم للمتقین. اور اسی سلسلہ میں تمام مینکائنڈ کو 3 کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیا گیا تھا, جو تقوی والا یعنی ایمان والوں, اور انکار کرنے والوں یعنی کافر, اور جو ہے منہ میں ایمان لائے بٹ دل میں ایمان نہیں لائے جو منافق. تو جو ہو سو ہو. اللہ نے آیت نمبر 21 میں پورا ہیومن کائنڈ کو دعوت دیا ہے, کیا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس عبدوا ربکم, اپنا رب کا عبادت کرو. تمام جو بھی تم تھے جو بھی تم ہو ابھی سب کچھ چھوڑو, انکار چھوڑو, اور ابھی اللہ اپنا رب کا عبادت کرو. اور اسی سلسلہ میں آدم علیہ السلام کا جو تخلیق کس طرح پیدا کیا گیا یہ بھی بتایا. کیوں بتایا؟ جو آیت نمبر 30, تاکہ ہم اللہ جو ہمیں اپنے رب کا عبادت کے لیے بول رہے ہیں تو وہ ہمارا اصلیت یاد دلانے کے لیے آدم علیہ السلام کا بات بھی آیت نمبر 30 سے آیا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کا اولاد میں سے ہوں. آدم علیہ السلام ہمارا باپ ہے, اور ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی اور بہت سارے نعمتوں سے نوازا, علم دیا, ہر ایک دنیا میں ہر ایک چیزیں کا نام سکھایا, وہ چیزوں کا استعمال یوز کیسا ہوتا ہے, کس میں بینیفٹ ہے, کس میں نقصان ہے, ہر چیزیں سکھایا. تو جس نے ہمارا باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کی ہمیں بھی پیدا کی اور اتنا سارا نعمتوں سے نوازا ہے ہمارا باپ آدم علیہ السلام کو بھی اور ہمیں بھی. تو عبادت ہمیں کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے. تو یہاں تک تو ہم لوگ کل پڑھ لیے ہیں. تو آج آیت نمبر 40 سے لے کر 123 آیت تک ایک دوسرا موضوع ہے جو کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ایڈریس کر کے یہ آیاتیں شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے یہ موضوع ہے. اس کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سمجھنے میں بہت ایزی ہو جائے گا. یہ جو سورہ بقرہ نازل ہوا ہجرت کے بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے پھر بالکل شروعاتی دور میں یہ سورہ بقرہ نازل ہوا. اور مدینہ کا آس پاس میں پڑوسی کون تھے؟
यहूद नसारा इन लोग थे, यहूद ज्यादा थे और उन लोगों में पहले किताब थे, यानी उन लोगों का किताब था। कौन सा किताब? तौरेत। तो वो लोग इल्म वाले थे, सोसाइटी में उनका दबदबा था, उनका से था कि उनके पास लोग चीजें पूछने के लिए आते थे, फैसला करने के लिए आते थे, दिन के बारे में या डेली लाइफ का डीलिंग्स के बारे में, हर चीज का फैसला के लिए भी यहूद के पास लोग आते थे, क्योंकि इन लोगों का किताब का इल्म था। और इन लोग दौलत भी थे, इन लोग बिजनेस में भी अच्छे थे, यानी सोसाइटी में इन लोग ऊंचे दर्जा का था, इनका बात सोसाइटी में माना जाता था। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाकर मदीना में दाखिल हुए तो ईमान वालों को लगा कि इन लोग यहूद तो सोसाइटी का ऊंचा दर्जा में है, और हम जनरली आमतौर पर क्या होता है, लोग जो बड़े हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो अगर ये यहूद अगर ईमान लाए तो लोग भी उन्हें फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग भी ईमान लाएंगे यहूद को। इसीलिए यहूद को बहुत नरमी बहुत ही नरमी के साथ उसे याद दिलाया जा रहा है, उसके साथ बात किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहे हैं? अभी आयत नंबर 40 का तर्जुमा से हम देखते हैं। आयत नंबर 40, ये इस्राएल के बेटों, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मुझसे क्या वादा पूरा करो। मैं तुमसे क्या वादा पूरा करूं और तुम मुझसे ही डरो। ये इस्राएल की बेटों, यानी ये बनी इस्राएल, ये कौन है? ये यहूद को कहा जाता है। इस बनी इस्राएल याकूब अलैहिस्सलाम का लकाब था। इसका माने क्या है? बनी इस्राएल का माने होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदगी करने वाला। तो यहाँ बोला जा रहे हैं, बोलने का मकसद ये है कि ये अल्लाह का बंदगी करने वालों को बेटा, मेरा बाप अल्लाह का बंदगी करते थे तो ऑटोमेटिकली मैं किसका बंदगी करेंगे? मेरा बाप जिसका करते थे उसी का ना। तो इसीलिए बाप का नाम लेकर या बनी इस्राएल, ये इस्राएल के बेटों, इसीलिए बोला जा रहे हैं कि तुम्हारा बाप तो अल्लाह का इबादत करने वाला था, तो तुमसे भी यही एक्सपेक्टेशन है, तुम भी उन्हीं का, उनको ही फॉलो करोगे। तो इस्राएल का माने ये होता है, इस्राएल किसका लक़ब था? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। तो मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मुझसे किया वादा पूरा करो। मुझसे किया वादा यानी कौन सा वादा? कि तमाम नबी रसूल पर ईमान लाओगे। तो अभी बनी इस्माइल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया, तो उन पर ईमान लाना होगा, क्योंकि ये वादा तुम्हें किया हो, जो मुझसे किया वादा पूरा करो। इसका माने होता है तमाम नबी रसूल पर ईमान लाने का जो वादा हो, और मैं तुमसे क्या वादा पूरा करूंगा। ये कौन सा वादा? अल्लाह ने कौन सा वादा किया? कि इंसान को माफ कर देंगे, बख्श देंगे, ये वादा अल्लाह ने की। तो ये वादा अल्लाह भी पूरा करेंगे। और सिर्फ मुझसे ही डरो, यानी यहूद आलिम थे, सोसाइटी में ऊंचा दर्जा वाला था, अगर ईमान लाए तो उनका सरदारी खत्म हो जाएगा। तो लोग उनसे, तो ये डर से तुम ईमान लाने में मत रोको, बल्कि लोगों को नहीं, अल्लाह को ही डरो, ये बताया जा रहे हैं। आयत नंबर 41 में बोला जा रहा है कि और उस पर ईमान लाओ जिसे मैंने उसको साबित करने के लिए उतारा, जो तुम्हारे साथ है, और तुम इससे पहले इनकारी ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़े कीमत पर ना बेचो, और सिर्फ मुझसे ही डरो। ना उस पर ईमान लाओ यानी तौरेत, कुरान, उस पर ईमान लाओ यानी कुरान पर ईमान लाओ। कुरान तौरेत को ही साबित करता है, उसे ही प्रूव करता है। तो उसमें जो कुरान अभी अल्लाह ने नाजिल किया है, उस पर ईमान लाने के लिए बनी इस्राएल को हुक्म दिया जा रहे हैं। और पहले इनकारी ना बनो। पहले इनकारी बनने से क्या होगा? तमाम उनके पीछे जो जितना लोग इनकार करेंगे, सभी का गुनाह का बोझ उन पर आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि रेडियो आविष्कार किया था किसने? मार्कोनी ने।
उसके बाद कितना रेडियो बन चुके हैं, लेकिन क्रेडिट किन पर जाते हैं? उन्हीं का नाम पर जो पहले किया है। तो इसी तरह अगर कोई गुनाह का शुरुआत इनकार का शुरुआत जो करेगा, तमाम इनकार करने वालों का गुनाह का बोझ उन पर होगा। तो इसीलिए उन्हें वार्निंग दिया जा रहे हैं कि तुम पहले इनकार करने वाला ना बनो। और मेरी आयतों को, यानी अल्लाह का जो अहकाम, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसे टेढ़ा मेढ़ा करके मनगढ़ंत या लोगों का चाहत के मुताबिक अल्लाह का अहकाम ये है, इसी तरह गलत मलत करके ना ही पेश करो, थोड़ी कीमत में बेचो। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा कीमत मिले तो बेचो, बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह का अहकाम के मुताबिक अगर जिंदगी जिएंगे तो उसका बदला क्या है? उसका बदला ये है जन्नत। और जन्नत का मुकाबले में दुनिया का कोई भी चीज ज्यादा कीमती नहीं है। दुनिया का हर चीजें ही कम कीमती वाला है। तो यही यहाँ बताया जा रहे हैं, और अल्लाह से डर कर अल्लाह का अहकाम के मुताबिक चलो। आयत नंबर 42 से लेकर 46 तक मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ। और हक का बातिल के साथ मिलावट मत करो, और ना सच को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। और नमाज कायम करो, ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में अकल नहीं? और सबर या नमाज के जरिए मदद हासिल करो, और ये बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं, जो जानते हैं कि अपने रब से मिलना है और उसकी और तरफ पलट कर जाने वाले हैं। ये जो बात बताया जा रहे हैं कि हक है, जो सच है, उसके बातिल के साथ मत मिलावट करो। अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किया है, अपना मनपसंद लोगों को ख्वाहिशात के मुताबिक उसे पेश ना करो, जबकि तुम्हें इसका इल्म है, तुम किताब वाले हो, तुम किताब पढ़ चुके हो। तो इतने सारे नियामत याद दिलाने के बाद अल्लाह अभी ईमान और नेक अमल के तरफ उन लोगों को बुला रहे हैं। ये दोनों पहले 42 और 43 आयत में ईमान और अकीदा का दुरुस्त भी किया गया, बाकी 3 आयत में नेक अमल कि हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और नमाज कायम करो। नमाज का मतलब होता है, सलात का मतलब एक तो है नमाज और एक है दुआ। और कायम का मतलब क्या होता है कि सीधा करना, जो चीजें को नमाज कायम, यानी सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं। शरीयत के मुताबिक नमाज कायम वो होता है कि नमाज का जो मुकर्रर, जो फिक्स वक्त है, उसी वक्त पर नमाज का तमाम जो शर्त है, कंडीशन है, जो रुकन है, वो फुलफिल करके खुशू के साथ नमाज पढ़ना। तो ये होता है अकीमुस सलाता। और कुरान में नमाज का जिक्र जब आए हैं, ज्यादातर अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो, इसी तरह ही आए हैं। और ज़कात दो, यानी ज़कात का माने होता है पाक करना और बढ़ाना। और शरीयत के मुताबिक ज़कात हम किसे कहते हैं? माल का वो हिस्सा जो शरीयत के हुक्म के मुताबिक माल से निकाला जाता है और शरीयत के मुताबिक ही खर्चा किया जाता है। तो ये तो बनी इसराइल अभी मुखातिब है, यानी बनी इसराइल के लिए भी नमाज और ज़कात फर्ज था, उनको भी करने के लिए बताया जा रहे हैं। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का जो नमाज था, शायद उसमें रुकू नहीं था। रुकू हमारा जो मुसलमान, हम लोग जो ईमान वाले, हम लोगों का नमाज में रुकू है। तो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, झुक जाओ, रुकू करो, यानी अभी ईमान लाओ और ये जो उम्मत मोहम्मदी मुसलमान, इन लोगों में शामिल हो जाओ, रुकू वाला नमाज करो। रुकू करो यानी ईमान लाओ और इन लोगों के साथ झुक जाओ। तो क्या लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो? यानी यहूदी आलिम लोगों को नेकी करने के लिए हुक्म भी देते थे और ये भी बताते थे कि एक नबी आएंगे, उसका साथ देना है, तमाम चीजें।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है ये भी हम लोग जानते भी थे, तो उन लोगों ने नेकी का हुक्म देते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। ईमान तो सबसे बड़ा नेकी का काम तो ईमान ही लाना, तो यही यहाँ बताया जा रहे हैं ये आयत में कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब पढ़ते हो, किताब के जरिए उन लोगों का तमाम चीजों का इल्म है, तो इसके बावजूद तुम कैसे ये काम कर सकते हो? क्या तुम्हें इतना भी अकल नहीं है? और सबर और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। तो ईमान क्यों नहीं ला रहे हो? क्या रुकावट है? क्या तुम्हारा जो सरदारी है, सरदारी तुम आलिम हो, लोग तुम्हारे पास पूछने के लिए आते हैं, तुम्हारा जो दबदबा है ये खत्म हो जाएगा। अभी सब लोग ईमान वाले के पास जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हारा जो फेम, जो शोहरत ये खत्म हो जाएगा, ये डर है? या तुम्हारा माल, लोग तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए आते हैं, तुम्हें गिफ्ट देते हैं, माल देते हैं, तो वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए तुम ईमान नहीं लाते हो? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि सबर और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, क्योंकि माल एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हम हमारा तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्ना पूरी कर सकते हैं। अगर हम सबर करें तो ये जरूरत कम हो जाएगा। सबर करें तो जरूरत कम हो जाएगा, जरूरत कम हो जाएगा तो माल का लालच भी कम हो जाएगा। तो ईमान लाने में माल का लालच जो रुकावट हट जाएगा। और नमाज के जरिए कैसे मदद हासिल होगा कि नमाज में देखो हमारा बॉडी का और जहनी जिस्मानी दोनों तरह का झुकाव है। हम आलिम हूँ, हम एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जब जयनमाज में खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, तो हमारा बड़प्पन, हम जो बड़े, ये तमाम चीजें वो हट जाते हैं। तो नमाज के जरिए जो तकब्बुर और घमंड वो मिट जाते हैं। दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है जमीन और हमारा बॉडी का सबसे ऊंचा हिस्सा है पेशानी। हमारा बॉडी का सबसे ऊंचा हिस्सा पेशानी झुक जाता है, गिर जाता है जमीन में। तमाम इसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के खातिर। तो तमाम घमंड, तमाम जो नाम का लालच है, ये हट जाएगा। तो सबर और नमाज के जरिए मदद, दुआ मांगोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होगा? जो माल के लालच और जो नाम का, फेम का जो लालच, ये दोनों हट जाएगा और ईमान लाने में कोई रुकावट नहीं रहेगा। और ये चीज मुश्किल है, लेकिन जो खुशू डरने वाले लोगों के लिए नहीं, जो जानते हैं कि ये दुनियादारी में हम मुसाफिर हैं, एक दिन पलट कर अपना रब के पास जाना है, उनके सामने हिसाब देना है। तो जो लोग जिनका ये इल्म है, जो ये सोचते हैं, याद रखते हैं, जानते हैं, तो उसके लिए ये काम आसान है। हम दिन भर इधर उधर घूमते हैं, हमें मालूम है जो रात होगा तो घर वापस जाना है, अब्बा का सामना करना है, तो दिन में हम कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि रात में पलट कर घर जाना है, अब्बा का सामना करना है, अब्बा को बताना होगा। तो इसी तरह जिसने ये जानते हैं, याद रखते हैं, ये दुनिया में हम मुसाफिर, कुछ दिन यहाँ रह के हमें पलट कर जाना है और रब का सामना भी करना है, हमारा एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सबर या नमाज आसान हो जाएगा। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे लिए भी सबर करना और नमाज पढ़ना आसान कर दे। फिर आयत नंबर 47, ये इस्राएल के बेटों, मेरी उस नियामत को याद करो जो मैंने तुम पर उपकार किया और मैंने तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत दी, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना उसकी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, उससे कोई बदला कबूल किया जाएगा, ना उन्हें मदद दी जाएगी। और जब हमने तुम्हें अच्छा, ये दोनों देख लेते हैं। ये मेरी उस नियामत को याद करो, मैंने तुम्हें दिया था और सारी दुनिया पर फजीलत। एक टाइम था जब बनी इसराइल
जब बनी इसराइल सबसे अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा, नबूवत कोई साल, कोई 1000 साल तक बनी इसराइल से नबी का माबूस हुआ था। तो नियामत क्या होता है? इल्म होता है, बादशाही होता है, नबूवत होता है, अच्छी सोहबत होता है, जो दिल का सुकून होता है, ईमान, इखलास, अखलाक, ये सारे ही तो नियामत होता है ना। तो एक टाइम था दुनिया में जब बनी इसराइल ये तमाम चीजें अल्लाह ने बनी इसराइल को ही अता किया था, नबूवत भी, बादशाही भी। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलाइमान अलैहिस्सलाम, इन लोगों में नबी भी थे, फिर बादशाह भी थे। तो अल्लाह ने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी थी। ये कितनी बड़ी बात है। तो जिसने इतना ज्यादा उपकार किया, तो हमारा फर्ज क्या होता है कि हम उन्हीं का ही इबादत करें। और उस दिन से डरो, उस दिन से डरो। कौन सा दिन? क़यामत का दिन। उस दिन क्या होगा? कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, ना उससे। दुनिया में क्या होता है, हमारा कोई मुश्किल होता है तो हम पड़ोस वालों को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं। हम क्या कहते हैं कि मुझे साथ दो, मेरा काम में आओ, मेरे लिए सिफारिश कर दो, है, कुछ पैसा दे के मुझे ये मुसीबत से निकालो, कुछ बदला दे के मुझे मुसीबत से निकालो, मेरा मदद करो। तो लोग आ भी जाते हैं। ये दुनिया में अगर कोई मुश्किल में, कोई मुसीबत में फंस गए, तो इसी तरह हम उससे निजात पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन, कौन सा दिन? क़यामत के दिन। यहाँ जो ये आयत में, आयत नंबर 48 में जो 4 चीज बताए गए हैं, उस दिन ये 4 दुनिया में जो जिस तरह से हम मुश्किलात से निजात पाने के लिए दूसरों को बुलाते हैं, दूसरे ने मदद करते हैं, बदला देते हैं, पैसा दे के, कुछ दे के, माल दे के, चीजें दे के। लेकिन क़यामत के दिन ये चारों चीजों का एक भी काम नहीं आएगा। उस दिन क्या काम आएगा? ईमान, और ईमान के साथ नेक अमल। उस दिन क्या काम आएगा? कल्बे सलीम। उस दिन सिर्फ फरिश्ता अल्लाह जिसे हुक्म देंगे उसी का ही सिफारिश काम आएगा। तो उस दिन का याद दिला के बनी इसराइल को अलर्ट किया जा रहे हैं। और सिर्फ बनी इसराइल नहीं, कुरान सबके लिए है, तो हमें भी अलर्ट किया जा रहे हैं। वो दिन बहुत बड़े दिन है, बहुत ही मुश्किल का दिन है। उस दिन का तैयारी हमें आज से करना चाहिए। इस दुनिया में ही उस दिन का तैयारी हमें करके ले जाना चाहिए। आयत नंबर 49, और जब हमने तुम्हें फिरौन के आदमियों से छुटकारा दिलाया, जो तुम्हें बुरा अजाब देते रहे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते रहे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ते रहे, इस छुटकारा दिलाने में तुम्हारे रब का बड़ा उपकार था। तो यहाँ कौन सा टाइम का बात बताया जा रहे हैं कि फिरौन जो मिस्र का बादशाह थे, उसे फिरौन उन लोगों को कहते हैं। फिरौन कोई पर्टिकुलर एक बादशाह का नाम नहीं था। तो एक फिरौन को इसी तरह कुछ फॉर्चून टेलर ने इसी तरह कुछ बोला था कि एक बनी इसराइल से एक बेटा होगा जो तुम्हारा खत्म करेगा। तो उसने इसी तरह हुक्म दिया था कि जितना भी बेटा पैदा होगा उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि उसका नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बेटा ना रहे। लेकिन अल्लाह ने उनसे, फिरौन से छुटकारा दिया था। तो ये नियामत भी अल्लाह ने याद दिला रहे हैं ये आयत में। आयत नंबर 50, और जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया और उससे तुम्हें पार कर दिया, और फिरौन को साथियों को तुम्हारे आंखों के सामने डुबो दिया। ये कब की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिला और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को हक के तरफ बुलाया, फिरौन ने नहीं माना। तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर मिस्र छोड़ के दूसरा जगह जा रहे थे। तो चलते चलते सामने समुद्र आ गए, इधर पीछे से फिरौन भी आ गए। तो इसी टाइम अल्लाह ने उस समुद्र मोजेजा के तौर पर समुद्र में रास्ता बना दिया था। ये कोई मतलब ज्वार भाटा जो होता है ना, हाई टाइड लो टाइड, ये नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से मोजेजा था। अल्लाह ने अपना नबी रसूल को इसी तरह मोजेजा, मतलब कोई भी तरीका से जब अल्लाह ने चाहा बचाया। ये तो नबी रसूल पर अल्लाह का खास रहमत था। हम देखते हैं हमारा जिंदगी में भी
अल्लाह ने हमें कितने दफा इसी तरह बचा लेते हैं। हम गौर नहीं करते, हमें गौर करना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कितने दफा होता है बिल्कुल एक गाड़ी टकरा ही रहे थे, है ना, एक्सीडेंट होने वाला ही था, अल्लाह ने हमें बचा लिया। हम तब ड्राइवर को क्रेडिट देते हैं, जो स्टीयरिंग जिसका हाथ पर है उसे क्रेडिट देते हैं, लेकिन क्रेडिट उसे थैंक्स दो, बट शुक्रिया अल्लाह का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बचा ली। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा में शामिल फरमाए। तो ये उस वक्त का बात हो रहे हैं आयत नंबर 50 में। तो समुंदर में रास्ता बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना बनी इस्राएल को लेकर समुंदर पार करके चले गए, और जब फिरौन ने इसी रास्ता में चलने लगे तो समुंदर बन गए और फिरौन डूबकर खत्म हुए। इसी तरह अल्लाह ने जालिम को खत्म करते हैं और जो हक पर चलते हैं ईमान वालों को अल्लाह बचा लेते हैं। तो आयत नंबर 51, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों की वचन दिया, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और जालिम बन गए। ये कब की बात है? फिरौन तो डूबकर खत्म हुए, फिर बनी इस्राइल मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अभी तो फिरौन जालिम फिरौन नहीं है, अगर अभी हमें कुछ हिदायत मिले, कुछ शरीयत मिले तो हम उस पर अमल करेंगे। तो इन लोगों का कहने के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह ने बताया कि तूर पहाड़ पर आ जाओ और 1 महीना इबादत करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर 1 महीना इबादत की और अल्लाह ने तौरेत अता की, फिर और 10 रात बढ़ा दिया, तो मिलाकर 40 रात हुआ। यहाँ जो 40 रात यहाँ जिक्र है, ये वो 40 रात का बात है। इन द मीन टाइम क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर पर आए थे, उनका कौम तो दूसरे जगह पर थे, तो वहाँ सामेरी नाम का एक आदमी, उन्होंने सोना चांदी से एक बछड़े का मूर्ति बनाया और उसे माबूद कहकर बोला यही माबूद है, इसका ही इबादत करो, और सब लोग ने उसका इबादत करने लगे, नाउजुबिल्लाह, और जालिम बन गए। ये जालिम बन गए। तो जालिम कैसे बने कि इबादत का हकदार कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह का हक दूसरे को देना, ये तो जुल्म नहीं हुआ ना, तो इसी तरह वो जालिम बन गए। लेकिन हमने इसके बावजूद भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। बछड़े को माबूद बनाया, इसके बावजूद भी अल्लाह ने माफ कर दिया, क्यों? ताकि शुक्रगुजार बनो, इबादत का मोहलत दिया और तौबा का मोहलत दिया, खुद को इस्लाह करने का मोहलत दिया है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मुअजिज़ा अता की। मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिए, हिदायत क्या होता है? जो अल्लाह के तरफ चलने का जो रास्ता, जो आखिरत का भलाई का जो रास्ता, उसे हिदायत कहते हैं। तो हिदायत के लिए किताब, कौन सा किताब? तौरेत। और फुरकान क्या होता है? जो हक और बातिल को फर्क करने वाला। ये भी शरीयत भी है, तौरेत में भी ये चीज है, तो ये पता किए। आयत नंबर 54, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों से कहा कि ये मेरी कौम वालों, तुमने बछड़े को देवता बनाकर खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तवज्जो करो, अपने आप को अपने हाथों कत्ल करो, तुम्हारे लिए भलाई अल्लाह ताला के पास इसी में है, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये उन लोगों ने जो बछड़े को माबूद बना लिया था, तो वो बहुत गुनाह था, जुल्म था, तो उसका तौबा का तरीका क्या हुआ, ये आयत में वो भी बताया गया है। क्या था तौबा का तरीका? कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाकर इबादत किया था, उन लोगों को खत्म कर दिया जाए। वो भी उन्हीं का साथ में जो लोग थे, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने गुनाह नहीं किया, जुल्म नहीं किया, उन लोगों ने अपना हाथों से, जिन लोगों ने गुनाह किया यानी बछड़े को इबादत की, उन लोगों को खत्म करेंगे। अल्लाह के तरफ से यही तौबा का तरीका बताया गया। इसमें कभी कभार हमें खराब लगता है, लेकिन हम देखता है कुछ गुनाह है इसी तरह जिसमें सिर्फ भड़बल तौबा से नहीं होता।
जैसे कि जो एडल्टरी है, एडल्टरी का उसमें भी अगर भरदा तौबा कर लो तब भी रजम का ही ये है। इसी तरह और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें तौबा करने के बावजूद भी खत्म कर देना ही तौबा का तरीका होता है, तो इस आयत में वो ही बताया गया। और तुम उसी भी आयत नंबर 55, और तुम उसे भी याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लेंगे कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर जिस नाफरमानी के दम स्वरूप तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर पड़ी। ये भी उस वक्त का बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए थे, और जब पेश किया गया तो लोगों ने पहले मान लिया था, बाद में बोला कि पता नहीं ये अल्लाह ही ने बताया या किसने बताया, हमें कैसे मालूम होगा, ये तुम अपना बोल रहे हो क्या नहीं। तो जब तक हम अल्लाह को अपना आंखों में देख ना लेंगे तब तक हम ईमान नहीं लाएंगे। तो जबकि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, अल्लाह सूरह अनाम आयत नंबर 103 में अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अब्सार, अल्लाह को कोई देख नहीं सकते, लेकिन इन लोगों ने इतना सरकश हो गया था कि इसी तरह डिमांड किया था, तो उसी का सजा के तौर पर उन पर बिजली गिर पड़ी और वो खत्म हो चुके। लेकिन आयत नंबर 56, लेकिन फिर हमने तुम्हें मौत के बाद जिंदगी इसलिए दिया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। तो इसके बाद क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों को साथ में लेकर आए थे, इन लोग आए थे तूर पहाड़ पर, तो अभी इन लोगों ने जो सरकशी की उसी का एज अ पनिशमेंट ये बिजली गिरकर वो लोग मर चुके। तो मूसा अलैहिस्सलाम को लगा अरे क्या हो गया, जब हम कौम के पास वापस जाएंगे, ऐसा ही तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सब बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे कि अरे इन लोगों को साथ में ले गया, फिर शायद नाउजुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ही खत्म कर दिया क्या, इसी तरह। तो अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस बदनामी से बचाइए, मरना ही है तो कहीं पर भी आप मर सकते। वो मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह दुआ किया जी, इसी तरह क्लैरिफिकेशन मारिफुल कुरान में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ के तौर पर अल्लाह ने उन लोगों को जिंदगी दे दिया, तो ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। आयत नंबर 57, और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की छाया की और तुम पर मन्ना और सलवा उतारा और कह दिया हमारी अता की हुई पाक चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि खुद अपने आप पर जुल्म करते थे। ये कब की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन से निजात मिल गया, तो इन लोग बनी इसराइल कहाँ का रहने वाले थे, ये लोग शाम का रहने वाले थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र आए थे, तब शाम देश अमालिका नाम का एक कौम वो जीत लिया था, कब्जा कर लिया था। तो अभी फिरौन खत्म हो गया, अभी बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना जो ओरिजिनल कंट्री शाम देश वहां जाओ और उसमें तुम लोग कब्जा करो। तो उन लोग निकले भी, लेकिन जब निकलने के बाद जब अमालिका के पास करीब पहुंचे तो बहुत डर गए, अमालिका का ताकत उन लोगों का कुव्वत सुन के डर गए और जाने से इनकार किया। तब अल्लाह ने बहुत नाराज हुए और एक मैदान जिसका नाम है ती मैदान में वो लोग थे, तो वहीं पर 40 साल घूमते रहे। तो उसी टाइम जब ये ती मैदान में थे तो उसी टाइम वो तो मैदान है, कोई शेड नहीं है, तो उन लोगों को धूप लगता था। मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगे अल्लाह से, और अल्लाह ने बादल यानी क्लाउड से छाया दिया। और मैदान है, खेती बाड़ी कुछ तो नहीं किया खाए, तो अल्लाह के तरफ से मन्ना और सलवा नाम का 2 चीज आसमान से ही गिरते थे। तो मन्ना एक ओस जैसा चीज, ड्यू जैसा वो गिरते थे, फिर जम जाते थे, शायद थोड़ा स्वीट टेस्ट था। और एक सलवा क्या है, एक परिंदा जैसा छोटा छोटा मीट, इसी तरह कुछ अल्लाह की तरफ से वो मिलते थे। तो अल्लाह ने हुक्म किया कि ये पाक चीजें खाओ, और बट इसे स्टॉप मत करो। लेकिन इन लोगों ने
हमारा हैबिट ऐसा है ना, आदत ही ऐसा है कि हम चीजें जितना जरूरत बहुत कम होता है, हमें स्टोर करने का ज्यादा टेंडेंसी होता है। तो इन लोगों ने भी इसी तरह कुछ किया था, तो और वो चीज खत्म हो गया। आयत नंबर 58, और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती से जाओ, इस बस्ती में जाओ, और जो कुछ जहां कहीं से भी चाहो जी भरकर खाओ पियो, और दरवाजा में से सिर झुकाते हुए दाखिल हो, और मुंह से कहो कि हम माफी चाहते हैं, हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे और भलाई करने वालों को और ज्यादा अता करेंगे। ये भी ये जो तीन मैदान में थे, उसी वक्त का वाकया है, बात है कि इन लोगों ने एक तरह का खाना खाते खाते बोर हो गया था। ये बाद वाला आयत में है, हम पढ़ेंगे। तो तब अल्लाह ने फरमाया कि करीब करीब कुछ बस्ती है, बस्ती का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, तो बोला था उस बस्ती में जाओ, जो एक सिटी या टाउन जो भी विलेज जो भी होगा, वहाँ खाने पीने का हर चीज मिलेगा, तो तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा जो चाहते हो मिल जाएगा। लेकिन इस शहर में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने 2 हुक्म दिया था, कॉल और फेल, एक बोलने का और एक किस तरह दाखिल होंगे। कॉल और फेल 2 तरह का हुक्म दिया था। सिजदारेज होके यानी झुक के दाखिल हो, सिजदारेज होके झुक के दाखिल हो, और मुंह से कहो हित्तातुन, हम माफी चाहते हैं। ये 2 हुक्म अल्लाह ने दिया था। लेकिन फिर उन जालिमों ने, आयत नंबर 59, फिर उन जालिमों ने ये बात जो उनसे कही गई बदल डाली। हमने भी उस जालिमों पर उनकी नाफरमानी की वजह से आसमान से अजाब उतारा। इन लोगों को 2 हुक्म दिया गया था कि सिजदारे सो के शहर में दाखिल हो और हित्तातुन कहते हुए दाखिल हो, लेकिन इन लोगों ने इतना सरकश थे, दोनों का एक भी नहीं किया। हित्तातुन को बदल कर उन लोगों ने हिंतातुन इसी तरह कुछ अल्फाज कहने लगे, जिसका माने अलग होता है, बदल डाला, बदल डाले, ये बोला है ना। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिलते हैं कि हम भी अल्लाह का, हम भी कोई चीज बदल नहीं सकते। इवन हम जो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मीनिंग एक ही है, इसी तरह भी हम नहीं पढ़ सकते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स टू बी अल्लाह, मीनिंग एक ही रह गया, लेकिन अगर हम इसी तरह पढ़े तो सूरह फातिहा पढ़ना नहीं होगा। उसमें जो नमाज का या तिलावत का, जो कुरान एक हुरूफ पढ़ने से 10 नेकी, ये नेकी नहीं होगा। तो हम बदल नहीं सकते कोई चीज, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो तो हर हाल में नहीं। तो उन लोगों ने ये जो सरकशी की, ये जो गुनाह की, ये जो जुल्म की, अल्लाह ने बहुत नाराज हुए और आसमान से अजाब उतारे। तो ज्यादातर आलिमों का कहना है कि प्लेग, हदीस का माफूम भी है कि प्लेग हुआ था, जो प्लेग के लिए हदीस का माफूम भी है, अगर किसी जगह में ये बीमारी आए तो उस शहर में कोई एंटर भी ना करे, और जो लोग वहाँ ऑलरेडी है वो एग्जिट भी ना करे। जैसे अभी कोरोना में भी इसी तरह ही कुछ हो रहे हैं, जो जहाँ हो उधर ही रुक जाए। तो